سوال کتنے لیں گے؟ جتنے آپ کہیں گے. چلو جی کیا اچھا چلو سر بھی اپنا کام پورا کر لو تاکہ بعد چلیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج آپ کو بہت ہی ہنگامی صورتحال میں تکلیف دی اور میڈیا کو مدعو کیا اور آپ سب لوگ یہاں آئے. آپ سب کا بہت شکریہ. جو ہنگامی صورتحال پہ آپ کو مدعو کرنے کا مقصد تھا کہ صبح پھول لگا کر پی آئی ڈی میں جس کارکردگی کا مظاہرہ کیا گیا وہ اتنی ناکامی کی داستان اور جھوٹ پہ مبنی کارکردگی کو بیچا گیا اور 6-7 وزیروں کی لائن لگا کر، کیونکہ جھوٹ بولنے کی مقدار جو تھی وہ اتنی زیادہ تھی کہ وہ ایک یا دو بندے کے بس کی بات نہیں تھی. یہی بات ہے کہ پچھلے 2 سال میں نالائق، نااہل اور چور حکومتی ٹولہ جو اس وقت پاکستان پہ آر ٹی ایس کو بٹھا کے مسلط کیا گیا ہے، اس نے جھوٹ بولنے کا ریکارڈ قائم کیا اور پاکستان کی عوام نے جھوٹ سننے کا ریکارڈ قائم کیا. کیونکہ جھوٹ بولنے کا ریکارڈ تو عمران صاحب اور ان کے ٹولے کا اب گینیز ورلڈ بک آف ریکارڈ میں بھی کوئی توڑ نہیں سکتا. آج جس کارکردگی کو بتایا گیا وہ اپنے حکومتی ریکارڈ اور رپورٹس کے منافی ہیں. آج ملک کے اندر معاشی بدحالی، قومی ترقی کی تباہی، بے روزگاری، بھوک اور افلاس ہر طرف چھائی ہوئی ہے، اور یہ تمام چیزوں کے جو اعداد و شمار ہیں وہ حکومتی ریکارڈ اور رپورٹس اور اکنامک سروے کا حصہ ہیں. اس لیے آپ ایک وزیر کے تحت یا آپ پوری کابینہ کے ذریعے جھوٹ بولنا چاہیں بھی تو آپ جھوٹ نہیں بول سکتے. آج پاکستان کی عوام کے گھر چولہا نہیں جل رہا. آج پاکستان کی عوام کے گھر 3 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے. آج پاکستان کی عوام کے گھر روزگار نہیں ہے. پچھلے 2 سال میں ملک کو جس معاشی تباہی، بھوک اور افلاس کے دھانے پہ کھڑا کر دیا اس نالائق، نااہل اور چور ٹولے نے، اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. آج دوبارہ سے جس ڈھٹائی کا مظاہرہ کیا گیا اس کی بھی تاریخی مثال نہیں ملتی. کہانی شروع ہوئی 90 دن سے، پھر وہ آئی 100 دن کے پلان پہ، پھر وہ آئی 1 سال کے پلان پر، اور اب 2 سال مکمل ہونے پر ایک بھی وعدہ مکمل نہیں، ایک بھی کمٹمنٹ مکمل نہیں، اور صرف ہر وعدے پہ جھوٹ، ہر کمٹمنٹ پہ یو ٹرن کی فخریہ پیشکش موجودہ حکومت کی جاری ہے. 2 سال میں یہ واحد حکومت ہے، کیونکہ مسلط کی گئی ہے، کیونکہ سلیکٹڈ ہے، کیونکہ آر ٹی ایس کو بٹھا کر لائی گئی ہے، اس لیے مختصر ترین وقت میں بدترین ناکامی کا شکار ہے. ان ریمارکیبل وزیر اعظم کی ریمارکیبل ناکامی کی داستان ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ جس طرح کے وعدے کنٹینر پر چھڑ کر پاکستان کی عوام سے کیے، آج اس وعدے کی ہر حقیقت بے نقاب ہو رہی ہے.
कश्मीर, सिफारती पॉलिसी, खारजा पॉलिसी समेत, मईशत समेत हर शोबे में नाकामी, सदमात, नुकसानात का मुल्क को सामना है। कोई ऐसा शोबा नहीं जिसमें झूठ ना बोला गया हो, जिसमें चोरी ना की गई हो, जिसमें करप्शन ना की गई हो। झूठ बोलकर वादे किए, झूठ बोलकर दावे किए। अहलियत, काबिलियत का जनाजा निकाला गया। मुल्क के अंदर इस वक्त मईशत तबाह, रोजगार तबाह, मुल्क की तरक्की तबाह और तबाह कुन हालात इस वक्त पाकिस्तान की आवाम के हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि मुख्तसर तरीन वक्त में तारीखी नाकामी किसी के दौर में नहीं थी। जिस शोबे को हाथ लगाया, ये वाहिद वजीर आजम है मुल्क का जो नोटिस लेकर तबाही करता है। वजीर आजमों की तरह नोटिस लेके आवाम को रिलीफ नहीं देता, बल्कि नोटिस लेकर हर शोबे में तबाही हुई। एक चोर खलंडरों का टोला है, करप्ट खलंडरों का टोला है, नाअहल नालायक खलंडरों का टोला है जो इस वक्त मुल्क पे मुसल्लत है और पाकिस्तान की आवाम 2 साल से इस कयामत और इस कर्ब से गुजर रही है। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूं कि जितने वादे 2 साल से पहले और 2 साल में किए गए, जो काबिलियत, जो अहलियत और ईमानदारी का दावा किया गया, वो महज धोखा और दिखावा नजर आई। जिस तरह मुल्क की मईशत तबाह हुई और आज कोरोना को बैसाखी की तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, मुल्क की मईशत को तबाह करके, मुल्क की बेरोजगारी को तबाह करके। 2013 में मुल्क की मईशत नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून ने 2018 में जब हम छोड़ के गए, आज जो लाग अलापा जा रहा था, राग अवाम के सामने और दूसरों पे मलबा डाल रहा था, अब आपकी नालायकी का मलबा सिर्फ आपके ऊपर है। 2018 में मुल्क की मईशत 5.8% पे तरक्की कर रही थी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इकोनॉमिक सर्वे खुद गवाही देता है, हुकूमती रिकॉर्ड का हिस्सा है। और आज मनफी 0.4% पे मुल्क की तरक्की हो गई है। मुल्क के अंदर महंगाई की शरह तारीख की बुलंद तरीन सतह 13% पर पहुंच गई है। जो खुराक, गोश्त, आटा, चीनी, चावल, गंदम, मुर्गी, दाल, सब्जी तारीखी बुलंद तरीन सतह के ऊपर 15% पर पहुंच गई है। मुल्क के अंदर कर्जा, अभी एक मौसूफ फरमा रहे थे, इतना झूठ बोलते हैं और इतने लोग बोलते हैं झूठ कि अब तो नाम भी याद नहीं रहता कि किसने कौन सा झूठ बोला था। अभी फरमा रहे थे कि हमने कर्जा नहीं लिया, तो 13,000 अरब का कर्जे का इजाफा 2 साल में किसकी जेब में गया? वो 13,000 अरब का कर्जा किसी रोड पर नहीं लगा नवाज शरीफ की तरह, किसी बिजली के मंसूबे पर नहीं लगा नवाज शरीफ की तरह, मुल्क की तरक्की पर नहीं लगा नवाज शरीफ की तरह, तालीम और सेहत के सेक्टर्स में नहीं लगा नवाज शरीफ की तरह। वो मुल्क की कर्जा इस करप्ट टोले की जेब भर गया। ये वो करप्ट टोला है जिसने 2 साल में पाकिस्तान की आवाम का आटा, चीनी, गंदम, पेट्रोल तक नहीं छोड़ा। मुस्लिम लीग नून की दौरे हुकूमत में जो इकोनॉमिक सर्वे का रिकॉर्ड का हिस्सा है, मैं पाकिस्तान की आवाम जो आज इन नालायकों, नाअहलों और चोर टोले से मायूस है, उनको भी बताना चाहती हूँ कि आप इकोनॉमिक सर्विस देखें। मैं नौजवानों को बताना चाहती हूँ कि आप इकोनॉमिक सर्विस गवर्नमेंट के देखें
کہ آج ملک کا کیا حال ہے اور 2018 میں جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت 5 سال کے بعد نواز شریف اور شہباز شریف کی قیادت میں ہم چھوڑ کر گئے تو کیا اعداد و شمار تھے. آج 52 روپے چینی جو نواز شریف کے دور میں تھی، آج ملک کے اندر پاکستان کی عوام اس کرپٹ ٹولے عمران خان کے فیصلے اور کرپشن کی وجہ سے آج 110 روپے اور 105 روپے کلو مل رہی ہے. آج آٹے کی قیمت 35 روپے سے 2 سال میں 75 روپے پاکستان کی عوام خرید رہی ہے. جو ڈالر کی تاریخی قیمت ہے جس کی وجہ سے ایکسپورٹ بڑھنی تھی، آج بھی 2 سال میں پاکستان کی ایکسپورٹ پاکستان مسلم لیگ نون کے آخری سال 2017-18 سے کم ہے اور ڈالر کی قیمت 115 سے 168 روپے ہو چکی ہے. کہاں گئے وہ دعوے؟ کہاں گئے وہ تمام کمٹمنٹس جو پاکستان کی عوام سے کی تھی؟ کیونکہ اس وقت جھوٹ بولا تھا، اس لیے آج بھی جھوٹ بولا جا رہا ہے. آج ایک وزیر نے کہا ہم نے بہت بڑے فیصلے کیے اور IMF کے ساتھ تعلقات بڑھائے. آپ نے تو خودکشی کرنی تھی اور IMF نہیں جانا تھا، اور آج وہی فیصلہ کارکردگی بتا کر دکھایا جا رہا ہے. آج ملک کی معیشت، ملک کے نوجوان کا روزگار، پاکستان کی عوام کے گھروں کا چولہا IMF کے حوالے کر دیا گیا ہے. بجلی اور گیس کی قیمت، گیس کے اندر میں دیکھ کر اس لیے بتاؤں گی کیونکہ میں جس پارٹی کو ریپریزنٹ کر رہی ہوں وہ جھوٹ نہیں بولتی. گیس کی قیمت میں 200% اضافہ 2 سال میں، بجلی کی قیمت میں 70% اضافہ 2 سال میں. آج پاکستان کی عوام جو ادویات خرید رہی ہے، آج مریض دوائی نہیں خرید سکتا 2 سال میں. 500% اضافہ ادویات میں. اور آج کہا گیا کہ ہم IMF کے ساتھ بڑے فیصلے کر کے تعلقات بڑھا رہے ہیں. بدترین مثال قائم کی جو آج پاکستان کے اندر خارجہ پالیسی، سفارتی تعلقات اور کشمیر جو پاکستان کی شاہ رگ ہے، اس کے اوپر حکومتی فیصلے کے اوپر سوالیہ نشان ہیومن رائٹس منسٹر شیریں مزاری نے اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ ہماری خارجہ پالیسی اور سفارتی تعلقات ناکام ترین رہے ہیں کشمیر کو لے کر. 73 سال میں کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ کشمیر کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھیں. آج ان نالائقوں، نااہلوں، چوروں نے ملکی معیشت تباہ کر دی تو آج ہمارا دشمن وہ کام کر رہا ہے، وہ اقدامات اٹھا رہا ہے جو 73 سال میں پاکستان بننے کے بعد اس کی جرت نہیں ہوئی. یہ ہے فیلئر، یہ ہے ناکامی. اس کو آپ 600 وزیر بھی لے آئیں تو آپ یہ ناکامی کے نیریٹو کو نہیں دبا سکتے. جیسے میں نے پہلے کہا، کشمیر، خارجہ پالیسی، سفارتی تعلقات اور معیشت سمیت تمام شعبوں نے نقصانات، صدمات اور حادثات کا سامنا کیا 2 سال میں. میڈیا پہ مکمل لاک ڈاؤن. جو ان کو نالائق کہے گا، جو ان کو نااہل کہے گا، جو ان کو کرپٹ اور چور کہے گا، اس کا لاک ڈاؤن کر دیا جائے گا. پارلیمان پر لاک ڈاؤن، آئین، دستور اور قانون سازی کا مذاق اڑایا گیا 2 سال. سیاسی مخالفین کا لاک ڈاؤن، جو ان کو سوال کرے گا وہ سزائے موت کی چکیوں اور نیب نیازی گٹھ جوڑ کے حوالے کر دیا جائے گا. تو کیا 22 کروڑ عوام کو آج نیب نیازی گٹھ جوڑ کے حوالے اور جیلوں میں ڈالا جا سکتا ہے؟ کیا میڈیا کی آواز بند کر کے غریب عوام کے گھر چولہا جلایا جا سکتا ہے؟ کیا مخالفین کی آواز بند کر کے
गरीब को रोजगार दिया जा सकता है? कहां गया 13,000 अरब का कर्जा? कहां गया आटा, चीनी, पेट्रोल से मुनाफा कमाया गया? किसकी जेब में? इमरान खान की जेब में। बनी गाला का खर्चा किस आमदन से चलता है? 2 साल में जिस हुकूमत ने 55 रुपए पर किलोमीटर का हेलीकॉप्टर चलाना था, वजीर आजम हाउस को ताला लगाना था और यूनिवर्सिटी बनाना था, 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घर देने थे। पहले 100 दिन में 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घरों का बंदोबस्त होना था। आज 2 साल में 1 घर और 1 नौकरी का बंदोबस्त नहीं हुआ। जिस तरह वजीर आजम हाउस को ताला नहीं लगा, वहां यूनिवर्सिटी नहीं बनी, बल्कि मुल्क की चलती तरक्की याफ्ता यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को बंद कर दिया गया। बजट में तालीम और सेहत के बजट को बंद कर दिया गया। और आज बड़े फख्र से नैब न्याजी गठजोड़ की हुकूमत नैब की कारकर्दगी हुकूमती कारकर्दगी बनाकर दिखा रही है। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि सियासी मुखालफीन और सियासी इंतकाम का तारीखी मिसाल कायम करने पे शर्म आनी चाहिए। और मैं ये भी कहूंगी कि जो सबसे जरूरी बात है कि इजहारे राय पर पाबंदी। आज पाकिस्तान में कोई शख्स जिस बुनियाद पे पाकिस्तान का वजूद मुकम्मल हुआ था, इजहारे राय की पासदारी, जो हमारे आइन का हिस्सा है, आज तमाम आवाज़ें और ज़बानें बंद कर दी गई हैं। और आखिर में मैं ये भी कहना चाहूँगी एक शेर से कि ये इतनी बदतरीन, नालायक, नाअहल हुकूमत है और हुकूमती टोला मुल्क पे मुसल्लत है कि जिसकी नाकामी की दास्तान, जो मैंने पहले कहा कि एक अनरिमार्केबल वजीर आजम की रिमार्केबल फेलियर और करप्शन और चोरी की दास्तान है, जिसकी सज़ा पाकिस्तान की आवाम सुन रही है। और पाकिस्तान की आवाम को मैं कहना चाहती हूँ कि ये वो नाकामी की दास्तान है, चोरी की दास्तान है, करप्शन की दास्तान है 2 साल में, कि कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊं। आज मुल्क के अंदर हर शख्स बेहाल है, मईशत तबाह है। और कल मुस्लिम लीग नून सुबह, ये मैं आपके तवस्सुत से पाकिस्तान की आवाम को बताना चाहती हूँ कि कल मुस्लिम लीग नून की हुकूमत सुबह एक हकायकनामा जारी करेगी। हर सेक्टर के अंदर जो करप्शन हुई 2 साल में, हर सेक्टर के अंदर, और आज जिसको झूठ बोलकर जिस पर पर्दा डाला जा रहा था, उसके ऊपर एक हकायकनामा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जारी करेगी। और उसमें इन चोरों का और झूठों का, जिसका आप पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता, उनकी परफॉर्मेंस पे और उनकी करप्शन पे और उनकी चोरी पे एक मुफस्सल कॉम्प्रिहेंसिव पेपर जारी करेगी। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, जो पेपर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस पर मैंने अभी अपना रद्द अमल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से दिया है, उसके ऊपर एक मुफस्सल पेपर जारी किया जाएगा। मैडम ये बताएं, आपने एक तवील हुकूमत के खिलाफ एक चार्जशीट जो है वो सामने रखी है और बिलाशुबा महंगाई उन चीज़ों में इजाफा भी हुआ है। ये बताएं कि आपको अपोजिशन का मैंडेट पाकिस्तान की आवाम ने दिया था, आपका पार्लियामेंट के अंदर और बाहर क्या रोल रहा, क्या आप इससे मुतमईन हैं? जी बिल्कुल, अपोजिशन का रोल आरटीएस ने दिया था, पाकिस्तान की आवाम ने तो हुकूमत का रोल दिया था। और हुकूमत अगर इलेक्शन में आरटीएस ना बैठता तो आज अल्लाह ताला के फजलो करम से और पाकिस्तान के अवाम के वोट के ज़रिए आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होती। क्योंकि 5 साल जिस तरह के बहरानों से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान को निकाला है, जो आज तक कोई भी सर्वे देख लें, कोई भी रिपोर्ट देख लें, आज भी एक सर्वे आया है जिसमें अदम एतमाद का मुजाहरा किया है पाकिस्तान की आवाम ने इस नालायक टोले के ऊपर। और अपोजिशन का रोल ये वाहिद दौर है जिसमें 2 साल हुकूमती नाकामी
नाअहली और चोरी से तंग आकर आज सवाल ऑपोजिशन से होता है, क्योंकि हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है। और जिस तरह ऑपोजिशन का किरदार मुत्तहदा ऑपोजिशन ने, लेकिन अगर हमसे ये एक्सपेक्ट किया जाए कि हम कंटेनर पर खड़े होकर मुल्क पे करना चाहिए था वैसे, क्योंकि ये मुसल्लत वज़ीर आज़म है, और हम इंशाअल्लाह 2 साल जिस तरह हमने इस हुकूमत की नाअहली और जिस तरह चोरी को हाईलाइट किया है, करप्शन को हाईलाइट किया है, उसी तरह करते रहेंगे। और अब हमारा मकसद मुत्तहदा ऑपोजिशन का, जो अभी जल्द ही APC के ज़रिए जिसके एजेंडा पे अभी काम हो रहा है, उसके ऊपर अपना लाएअमल भी देगी और इस हुकूमत को घर भेजने का पूरी स्ट्रैटेजी पाकिस्तान की आवाम के लिए अनाउंस करेगी। देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिस तरह की ऑपोजिशन ने एक बयानिया गवर्नमेंट ने एक बयानिया बेचने की कोशिश की कि ऑपोजिशन जो है वो मुत्तहिद नहीं है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत को अपनी फ़िक्र नहीं है, 22 करोड़ आवाम की फ़िक्र नहीं है, आवाम के रोज़गार की फ़िक्र नहीं है, आवाम की मईशत की फ़िक्र नहीं है, मुल्क की तबाही की फ़िक्र नहीं है, फ़िक्र सिर्फ मुस्लिम लीग नून की है, क्योंकि अपना काम करना नहीं है। और ऑपोजिशन, जैसे मैंने पहले कहा कि आपका तरीक़ा कार फ़र्क हो सकता है, मुख्तलिफ़ पार्टियाँ हैं ऑपोजिशन के अंदर, लेकिन जब एक स्ट्रैटेजी बन जाती है तो वो मुत्तहद स्ट्रैटेजी होती है, एक डिस्कस स्ट्रैटेजी होती है, एक कॉमन स्ट्रैटेजी होती है, और उसके ज़रिए मुत्तहदा ऑपोजिशन इकट्ठी चलती है। डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, राय मुख्तलिफ हो सकती है, और यही जमहूरियत की खूबसूरती है। लेकिन जब एक फ़ैसला होता है जो जॉइंट ऑपोजिशन करती है, फिर उस फैसले के ज़रिए अपना लाएअमल फाइनल किया जाता है। जी बिल्कुल, इन 2 सालों में आप पार्लियामेंट के अंदर इनकी तरफ से तो गाली आई, हमारी तरफ से हमने निशानदही की इनकी नालायकी, नाअहली और चोरी की। हमने जब जब पार्लियामान में पाकिस्तान की आवाम की आवाज़ को बुलंद किया, इन्होंने पार्लियामान को लॉकडाउन किया। आज मईशत की तबाही, रोज़गार की तबाही, पाकिस्तान की मुल्क की तरक्की की तबाही, क्योंकि ये 2018 में जो पिछले 10 से 15 साल 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स के ज़रिए मुल्क में पैसा आया, मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश की गई, और हमने इन तमाम चीज़ों को हाईलाइट किया। मुस्लिम लीग नून ने 2 साल में बेकसूर होने के बावजूद और आवाम की खिदमत की वजह से इन हकूमती टोले जो कि सियासी इंतकाम में अंधे हो चुके हैं, अगर हम कुछ ना कर रहे होते तो हम सजाए मौत की चक्कियों में ना होते, अगर हम कुछ ना कर रहे होते तो हम जेलों में ना होते, अगर हम कुछ ना कर रहे होते तो हमारी बेटियां गिरफ्तार ना होती, अगर हम कुछ ना कर रहे होते तो मीडिया को बंद ना किया जाता, पार्लियामान को लॉकडाउन ना किया जाता, इज़हारे राय को दफन ना किया जाता, अगर ऑपोजिशन कुछ ना कर रही होती। मैडम, आप नवाज शरीफ साहब की बात कर रही हैं, उनके दौर की, कि उन्होंने बड़ी खुशहाली मुल्क में लाए थे। इस वक्त जो है वो सवाल उठाया जा रहा है, और अदालत भी सवाल उठा रही है कि मियां साहब कहाँ पर हैं और वो कब वापस आएंगे। देखिए, मैं पहले भी बहुत दफ़ा बात कर चुकी हूँ कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मौजूदा हुकूमत की इजाज़त से, कोर्ट की इजाज़त से, और क्योंकि मौजूदा हुकूमत ने कहा था कि मियां नवाज शरीफ का इलाज नहीं हो सकता पाकिस्तान में, बोर्ड ने एक रिपोर्ट दी थी और वो जमा कराई गई थी, जो हुकूमती बोर्ड था, और मियां नवाज शरीफ साहब अपना इलाज कराने बाहर गए थे। और इंशाल्लाह बहुत जल्द, क्योंकि अब कोरोना का बाहर भी जो हॉस्पिटल्स हैं वो खुलना शुरू हो गए हैं, और बहुत जल्द वो अपना इलाज मुकम्मल करते। नवाज शरीफ उस रात अपनी बेटी का हाथ पकड़कर जज साहब का बयान सुनने से पहले, उन्होंने वो बयान सुन लिया था, जज साहब की वीडियो के बाद पाकिस्तान की आवाम को उस केस की हकीकत वो जान चुके हैं।
वो वापस आए थे। मुल्क की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। आज भी शहबाज शरीफ झूठे इल्ज़ामात पर नैब के दफ्तर और उनके घर पे छापा मारा जा रहा है। आज भी हमजा शहबाज जेल में हैं। आज भी मरियम नवाज़ को नैब की पेशी के लिए बुलाया जाता है। आज भी, कल भी हनीफ अब्बासी साहब को नैब में बुलाया गया था। हर रोज़ मुस्लिम लीग नून का ज़राए से नैब न्याजी गठजोड़ प्रेस रिलीज़ देकर मीडिया ट्रायल कर रही है। इसलिए हम ना डरने वालों में से हैं। आप सबको जेलों में डाल दें, लेकिन खुदारा पाकिस्तान के अवाम की फ़िक्र करें, उनको रोज़गार दें, उनको 1 करोड़ नौकरी दें, उनको 50 लाख घर दें, उनको खुदा का वास्ता है इस क़यामत से, इस कर्ब से निकालें। हमारे साथ जो करना है उसका मुकाबला करना हम जानते हैं, जिस तरह हमने पहले भी किया है। और जिस पार्टी ने मुशर्रफ के दौर का मुकाबला किया हो, वो इस तरह की फाशिस्ट हुकूमत और आमराना सोच रखने वाली हुकूमत और वज़ीर आज़म से डरती नहीं है। मैडम, जब कभी भी हुकूमत को टफ टाइम देने का मौका आता है, पार्लियामेंट में लगा हुआ है, उस वक्त बड़ी दो जमातें ऑपोजिशन की हमेशा दूसरी जमातों को टीच कर जाती हैं। अभी हाल ही में हमने देखा कि कानूनी साजी जब हो रही थी पार्लियामेंट में, उस वक्त भी जिन जमातों को इस्तेमाल के लिए बगैर हैंड रिसीव वोट दिया गया उनकी भी। ये क्या रवैया है कि पार्लियामेंट के अंदर एक ब्लैक वोट ऐसी करके अगर आप डील कर लेते हैं, बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दें? देखिए, सबसे पहले आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि डील अगर करनी होती तो नवाज़ शरीफ मरियम नवाज़ के साथ वापस ना आते। अगर डील करनी होती तो शहबाज शरीफ नैब के अकूबत खाने में ना रहते। अगर डील करनी होती तो मरियम नवाज़ जेल में ना जाती। एहसन इकबाल, शाहिद खाकान अब्बासी, राना सनाउल्लाह, साद रफ़ीक साहब, सलमान रफ़ीक साहब, हनीफ अब्बासी साहब जेलों में ना होते। अगर डील करनी होती और पाकिस्तान की आवाम के हक़ के ऊपर समझौता करना होता तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज सजाए मौत की चक्कियों में और काल कोठरियों में ना रहती। ना मुस्लिम लीग नून ने कभी डील की है और ना आगे करेगी। फाटफ के बिल्स के ऊपर हमने निशानदही की, जहां वो लेजिस्लेशन पाकिस्तान के अवाम के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ थी। हमने ये बिल रुकवाया। हमने स्पीकर साहब को बताया कि इस बिल के अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं, मुत्तहिदा अपोजिशन ने, और उसके बाद इन जाहिलों को, इन नालायकों को पता चला और इन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि वाकई ही ये बिल जो है वो ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ है। उसके बाद इनकी नालायकी और नाअहली की वजह से जब नेशनल असेंबली के अंदर वो बिल लेकर आए तो वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में लेकर आए, जिसकी वजह से 2 बजे रात को जब सेनेट में गया वहाँ निशानदही दोबारा हुई कि ये दूसरा बिल है। फिर दोबारा सेनेट में वो अमेंडमेंट्स हुई जो नेशनल असेंबली में हो चुकी थी। फिर वो बिल वापस रात को 2 बजे कॉल किया गया। इस नालायक नाअहल हुकूमत, जैसे मैंने पहले कहा कि इनकी नालायकी की वजह से आज पाकिस्तान का हर शोबा और हर इंस्टीट्यूशन जो है वो एट रिस्क है। चाहे टिड्डी दिल का मामला हो, कोरोना का मामला हो, सैलाब का मामला हो, कोई भी ऐसा शोबा नहीं है जिसमें इनको बगैर किसी मदद के, सिर्फ एक शोबा है जिसमें 100 नंबर, 200 साल में एक शोबे में 100/100 झूठ बोलना, चोरी करना और यू टर्न लेना। ये वो शोबे हैं जिसमें इमरान साहब और इस हुकूमत को 100 में से 100 नंबर हैं। बल्कि मुझे कभी कभी डर लगता है कि 100 में से 100 से ज़्यादा नंबर ना मिल जाएं, झूठ में, चोरी में और यू टर्न में। ये है वो हुकूमत जो इस वक्त पाकिस्तान की आवाम जिसका सामना कर रही है। थैंक यू। जी पूछा क्यों नहीं? पूछना था ना सवाल। वापस आएंगे जैसे